Welcome to my channel Chemical Chemistry Classes. In my previous video we are discussing enthalpies for different types of reaction, in which we have covered the standard enthalpy of combustion and standard enthalpy of atomization. In today's video we are discussing bond enthalpy and lattice enthalpy and many more. So in bond enthalpy is the energy required to break one mole of specific chemical bond in a molecule. So bond enthalpy is a measure of a strength of a chemical bond, means higher bond enthalpy means stronger bond, right? So in chemical reaction that involves the breaking and making of chemical bonds, like, so in both the process, while making or by breaking the bond, energy is required to break a bond, and energy is released when a bond is formed. So with reference to all this enthalpy change associated with chemical bond, we are discussing two different terms in thermodynamics, that is bond dissociation energy and the mean bond enthalpy, right? So first, what is bond dissociation enthalpy? Bond dissociation enthalpy is the amount of energy required to break one mole of a specific covalent bond in a gaseous molecule, and the cleavage under which this goes, that is a homolytic cleavage, right? So in mean bond enthalpy is the average amount of energy that is required to break one mole of specific type of bond in a molecule. So let's discuss something with reference to both this term. First we will discuss in terms of a diatomic molecule, right? So consider this process in which what happen, one mole of dihydrogen gas are broken into two. While breaking this HH bond, this HH bond, 2H is formed, right? So the bond enthalpy change involved in this process is the bond dissociation enthalpy of HH bond, राइट. सो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी इज द चेंज इन एंथैल्पी. उसमें क्या चेंज, इसमें चेंज ये आ रहा है कि जब वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ अ गैसियस कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट, लेकिन ये किस में होगा, ओनली इन गैस फेज. सो इट इज़ सेम एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसमें भी हमने बॉन्ड की ब्रेकिंग के बारे में बात की थी कि एटमाइजेशन का मतलब यही होता है कि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए भी ट्रू है. जैसे कि वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ Cl2. In this we are going to break this Cl bond and make 2Cl, and same as in case of O2 where we are going to break this bond and form 2O, राइट. सो इन केस ऑफ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि उसका बॉन्डिंग डिफरेंट होती है विद इन द सेम मॉलिक्यूल. नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. सो अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, देन वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मीथेन लाइक CH4. In this, as you can see, this reaction CH4 in gaseous phase gives carbon and 4 hydrogen, और इनकी जो एटमाइजेशन एनर्जी भी लगेगी that is 1665 किलो जूल्स पर मोल. मतलब इन मिथेल जो जितने भी 4 हमारे पास 4 CH बॉन्ड होंगे इसमें, तो जितने भी CH बॉन्ड्स हैं 4 वो आइडेंटिकल है उनकी बॉन्ड लेंथ और उनकी एनर्जी. सो जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने की, वो भी हम डिस्कस करते हैं कैसे एनर्जी उसको इजीली ब्रेक करती है. लाइक इन फर्स्ट दिस केस CH4 अंडरगो एंड गिव CH3 एंड 1 हाइड्रोजन, और इसकी जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी और डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज़ 4 to 7 किलो जूल्स पर मोल. इन नेक्स्ट प्रोसेस में इसको ब्रेक करेंगे हम CH3 को, फिर CH2 को, फिर CH के, एंड देन वी गेट दिस, राइट. सो इन सच केसेस वी यूज़ मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH. लास्ट हमारी इक्वेशन ये आएगी, इसमें हमने यहाँ से क्या यूज़ किया, मीन बॉन्ड एंथैल्पी यूज़ किया है. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का, जैसे कि CH4 है, तो अगर हमने इसकी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, हाफ इसकी
H naught. What is this? This is the enthalpy of atomization, right? So अगर हम पहले एक CH बॉन्ड की कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि इसकी मैंने बताया था 1/4 बाय 1/4 आएगा 1665 and we get 6 kilojoules per mole, right? So we find that mean जो CH bond की enthalpy है वो हमने इससे की 1/4 enthalpy of atomization से find की कि what is the mean bond enthalpy. जो mean bond enthalpy है CH bond की ही हम easily निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिफर करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपाउंड्स के. अलग अलग कंपाउंड्स होंगे तो उसके अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वैल्यूज आएगी. यूजिंग हेस लॉ जो बॉन्ड एंथैल्पीज कैलकुलेट की जाती है, जितने भी बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यूज आती है सिंगल मल्टीपल, दे आर कैलकुलेटेड, पहले से कैलकुलेट करके इसके बहुत सारा डाटा अवेलेबल इन बुक्स और ऑल्सो इन नेट. तो जो रिएक्शन एंथैल्पीज होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज दैट इज अराइज फ्रॉम द चेंज दैट अकम्पनी द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स और जो न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं. सो अगर हम प्रिडिक्ट करें कि एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इन गैस फेज, तो we should know that bond enthalpy, जो standard enthalpy of reaction होती है वो क्या होती है, that is delta RH. This is the standard bond enthalpy. इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Sigma, as you all know, this is summation sign in which we are doing bond enthalpies of reactant. BE here shows bond enthalpy minus bond enthalpy of products, right? So इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से we are easily form the bond enthalpies of reactants and products, right? So next we are going to discuss lattice energy. Lattice energy क्या होती है, right? So lattice energy और lattice enthalpy, right? तो अगर हम इसको enthalpy ही करते हैं, हम यहाँ पे आपकी अगर बुक में मेंशन तो वो lattice enthalpy करते हैं. तो lattice enthalpy is that energy that is required to break different bond. Lattice enthalpy is also used and lattice energy is also used in Born-Haber cycle. So lattice energy is the energy required to completely separate 1 mole of an ionic solid into an constituent gaseous ion. So lattice energy क्या measure करती है? Strength करती है ionic bonding की solid में, और greater lattice enthalpy का मतलब होता है उसकी stronger electrostatic attraction है between the ions, ठीक है. In this lattice energy we are going to discuss Born-Haber cycle, ठीक है. हमने NaCl की रिएक्शन लिखी है, सॉलिड में है, देन Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव आता है. तो हम इसकी lattice enthalpy कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिगर इज गिवन इन NCERT. सो यहाँ पे सबसे पहले जो सॉलिड हमारा Na है that is going to convert in gaseous phase. So this is sublimation हुई है सोडियम मेटल की, जिसमें 108 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी हमारी यूज़ हुई है, राइट. सो इन नेक्स्ट प्रोसेसेस जो हमारा सोडियम गैस है that is converted into Na positive with 1 electron negative. This is the ionization of sodium atom. And next process is half Cl2 undergo Cl. As you can see, half Cl2 then converted into Cl. So this is a dissociation of chlorine. The reaction enthalpy is half the bond dissociation enthalpy. जो इसकी reaction enthalpy आएगी that is half than this, right? So in next is कि Cl gas is converted into Cl negative gas. Here you can see this is electron, that is electron. Chlorine is gained 1 electron. So electron gain enthalpy is minus 348.6 kilojoules as mentioned here. And next is the Na positive and Cl negative gives NaCl, last step. And this is what? This is a sequence of steps and this is known as the Born-Haber cycle. The importance of this cycle is the sum of enthalpy changes around the cycle. जितना भी sum आएगा that is 0. So applying Hess law we get, अगर हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू हेस लॉ वी गेट दिस एनर्जी इज इक्वल टू 4
इन सब एनर्जीज को अगर हम ऐड ऑन करते हैं वी गेट 788 किलो जूल्स। और अगर हम NaCl की बात करें तो इंटरनल एनर्जी अगर हम इसकी यूज़ करते हैं दैट इज़ 2RT, दैट इज़ मतलब अगर हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा Ng दैट इज़ 2, अगर हम उसको इक्वल करते हैं 783 के साथ एंड इज़ इक्वल टू 783, सो इसके इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैटिस एंथैल्पी और कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सबमिलेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होते हैं इन सॉल्वेंट, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस है जिसकी हम एंथैल्पी चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब हम 1 मोल ऑफ कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे। सो जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को जब हम इन्फिनाइट टाइम्स डिल्यूशन करेंगे तो उसकी एंथैल्पी चेंज को ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंस के डिजॉल्विंग पे उसके एक इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आएगा जब उसमें इंटरेक्शन होगी आयंस की और वो नेग्लिजिबल होगा। सो व्हेन आयनिक कंपाउंड को जब हम डिजॉल्व करते हैं एक सॉल्वेंट में, जो आयंस होते हैं देर पहले तो वो ऑर्डर्ड पोजीशन में होते हैं, एक अलाइन होते हैं, लेकिन जब वो डिजॉल्व होते हैं तो वो एकदम आराम से फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जो सॉल्वेशन होती है आयंस की वो भी इस टाइम अकर होती है। एज यू कैन सी हियर AB, जब हमने लैटिस एनर्जी को लगाई A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, ठीक है, और ये सोल्यूशन से ही आया। सो दैट मीन्स द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ AB, सोल्यूशन की एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? डिटरमिन बाय सिलेक्टिव वॉल्यूम ऑफ लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी की सिलेक्टिव वॉल्यूम क्या है? दैट मीन्स अगर हमने ऐसे सोल्यूशन निकालना है देन वी कैन ऐड लैटिस बाय हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सो फॉर दिस मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जो वैल्यू होती है सोल्यूशन की दैट इज़ पॉजिटिव और डिसोसिएशन प्रोसेस हमेशा एक एंडोथर्मिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन क्या कहता है कि हम किसी चीज़ को डिल्यूट कर रहे हैं। जब हमने एक एंथैल्पी और एक सोल्यूशन की रखी है, उसकी चेंज हो रही है, जब उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं इन सॉल्वेंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। सो इसमें क्या हो, जो एंथैल्पी चेंज होगी डिज़ोल्व करने को 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड को 10 मोल में अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, एज यू कैन सी HCl को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 10 मोल ऑफ वाटर में, तो हम उसकी जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज़ माइनस, जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू एंथैल्पी की वैल्यू आएगी -69.01। फिर अगर हम आगे 3 सेट में कंसीडर करें कि 25%, 40 और इन्फिनाइट डिल्यूशन कर रहे हैं, 25 ml 40 ऐसे अलग अलग तरह की मोल में डिल्यूशन हो रही है। सो जो वैल्यूज़ आएगी डेल्टा H की ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे जैसे हम मोर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है वो एक लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है दैट इज़ फिनाइटली डिल्यूट सोल्यूशन। सो फॉर HCl अगर हम S3 की वैल्यू दैट इज़ -74.85 को अगर हम इस सोल्यूशन को वैल्यू को कट आउट करते हैं S3 की और S1 की आएगी -72.03, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आती है -0.76। तो 0.76 किलो जूल जो है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। इट इज़ द हीट दैट इज़ विड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग जब हम एडिशनल सॉल्वेंट को ऐड करते हैं इन सोल्यूशन। सो एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन that is going to depend on the original concentration of the solution and the amount of solvent added. Thank you.